ایک اور سچائی اور حقیقت یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 8 باب بہت ہی مشہور آیت، اس کی 32 آیت، لیکن ہم اس کو 31 سے لے کر اس کو 38 تک پڑھیں گے۔ تو جو آیت آج جس کے گرد ہم آج بات کریں گے وہ ہے اس اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین نہ کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو بھی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ آمین۔ آمین۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ جو آخری آیت آج کلام مقدس میں سے پڑھی گئی ہے۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہے، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا وہ کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہی، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ۔ اگر حقیقت میں دیکھیں تو اس ٹائم میں وہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی بھی رومنز کی غلامی کر رہے ہیں، ابھی بھی کس کی تسلط میں ہے؟ رومنز کی تسلط میں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کسی کی غلامی میں نہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام۔ اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا گھر میں رہتا۔ جسے بیٹا آزاد کرے وہ واقعہ ہی آزاد ہے۔ آج اسی طرح بہت دفعہ ہم اسی خول کے اندر رہتے ہیں، ہم تو مسیحی ہیں، یسوع نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ ہاں واقعہ ہی یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ It's a truth. It's a reality. لیکن کیا ہم وہ کرتے بھی ہیں جو خدا سے سنتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے؟ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ عزیزو، سچائی آزاد کرتی ہے۔ آج بہت سے جھوٹ ہمارے ارد گرد ہیں، بہت سے جھوٹوں کی گردش ہمارے ارد گرد ہے۔ شاید ہم بھی اسرائیل کی طرح اسی بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، لیکن what is the truth inside؟ ٹروتھ یہ ہے، حقیقت یہ ہے
सच्चाई ये है कि वो खुदा के साथ नहीं है। उन्होंने खुदा को छोड़कर रवायात को ज्यादा जगह दी है। जहां पर फायदा नजर आता है वो खुदा के कलाम को अपने लिए फायदे के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मसीह ने बारहा इस बात पर उन्हें तनकीद की है। और क्या आज हम सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई हमारे अंदर है? क्या हम इस सच्चाई को लेते हैं? याद रखिए, झूठ कभी भी हमें आजाद नहीं होने देता। झूठ किसी किस्म का भी है। आज से 50 साल पहले भी आप झूठ का शिकार हुए हैं और अभी तक आपने उस झूठ का इकरार नहीं किया है, तो वो झूठ आपको आजाद नहीं होने देगा। सच्चाई आपको आजाद करेगी। वो झूठ आजाद नहीं होने देगा। वो जो छुपा बैठा दुश्मन हमारे अंदर छुपा बैठा है, पीछे से वार कर रहा है, वो हमें आजाद नहीं होने देगा जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, इसकी 31 वर्ष में, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द हो। अगर तुम मेरे कलाम पर ऊंची आवाज चाहिए इसमें, अगर तुम मेरे कलाम पर क्या रहोगे? कायम रहोगे, तो फिर तुम मेरे क्या ठहरोगे? शागिर्द। और जो मसीह का शागिर्द है वो कभी गुलाम नहीं है। तो हालेलुया। जिसे बेटा आजाद करे वो वाकई ही आजाद है। क्या हम आजाद हैं? क्या हम गुनाह के गुलाम तो नहीं? क्या झूठ हमें पूरी तरह से अपनी सच्चाई को सेलिब्रेट नहीं करने देता? जिंदगी में छुपे हुए झूठ कभी भी आपके सामने आ खड़े होंगे और आपकी पूरी सच्चाई को, जिस सच्चाई से आपने अपने आप को कवर किया होगा, वो झूठ उस सच्चाई को क्या कर देगा? नंगा कर देगा। इसीलिए मसीही जिंदगी जो है वो साफ और शफाफ जिंदगी है। छुपी हुई चीजें हमेशा खतरनाक हैं, कभी भी सामने आकर आपको चैलेंज दे सकती है। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम के ऊपर अपनी जिंदगी को तमीर कर रहे हैं तो फिर कभी भी किसी किस्म का झूठ आपको मलबूब नहीं कर पाएगा। अगर सच्चाई जिंदगी के अंदर मौजूद है तो आप सेटिस्फाइड होंगे, आप इत्मीनान में होंगे। कोई झूठ आपकी सच्चाई को मात नहीं दे सकता, लेकिन अगर सच्चाई होगी तो फिर मात नहीं खाएंगे। अगर सच्चाई होगी तो फिर मात नहीं खाएंगे, अगर सच्चाई नहीं होगी तो फिर हम क्या खा जाएंगे? मात खा जाएंगे, हार जाएंगे। यीशु मसीह का कलाम सच्चाई पर मबनी है। खुदा की हर बात सच्चाई पर मबनी है। क्या हम इस पूरी सच्चाई के वारिस हैं या नहीं हैं? हालेलुया। क्या आप इस पूरी सच्चाई के वारिस हैं?
पौलुस रसूल कहता है हम मसीह के, हम मिरास और खुदा के क्या है, वारिस है। तो इसका मतलब है हम इस सच्चाई के भी वारिस हैं। ये सच्चाई भी हमारी सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यह हर एक कौम के लिए खुदा यीशु मसीह का पैगाम है। हर एक शख्स के लिए खुदा यीशु मसीह का पैगाम है। यहां बैठे हुए हर एक शख्स के लिए यीशु मसीह का पैगाम है कि राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह है। बहुत से नबी हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से स्कॉलर्स हैं, बहुत से सूरमा हैं, बड़े बड़े जो हैं वो ज़हीन ज़हन इस दुनिया में आए हैं, लेकिन एक भी दावा ऐसा इस दुनिया में नहीं किसी ने किया जो यीशु मसीह ने किया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। क्या आप इस सच्चाई से वाकिफ हैं? क्या ये ट्रुथ आपकी जिंदगी के अंदर है? अगर ये ट्रुथ आपकी जिंदगी के अंदर है तो आप हमेशा सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जो सच्चा है वो कभी डगमगाता नहीं है। सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो अपनी सच्चाई पर कायम रहा और सलीब पर चला गया। सच्चाई आसान नहीं है, सच्चाई मुश्किल है। आप घर में सच बोले, घर वाले लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप मुआशरे में सच बोले, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अब अपनी जॉब प्लेसेस पर सच बोले, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सच्चाई की कीमत भी देनी पड़ती है, लेकिन यीशु मसीह हमें यह क़ुव्वत दे कि हम सच्चाई के साथ रहें। लास्ट संडे 21 सितंबर को जब चार्ली कैरिक की मेमोरियल सर्विस हुई तो उसकी बीवी ने सच्चाई का ऐलान किया। उसने पता क्या सच्चाई का ऐलान किया? उसने कहा कि यीशु मसीह ने सलीब पर लोगों को माफ किया। उसने कहा क्या खुदावन ये नहीं जानते कि क्या करते हैं? और वो नौजवान भी उनमें से एक है, उन जैसा ही है, वो भी नहीं जानता था कि उसने क्या किया है। कहती मेरा दिल बहुत बोझल है, बहुत जख्मी है, लेकिन मेरा ईमान मुझे कुव्वत देता है कि मैं इस शख्स को माफ करूं। ये सच्चाई है और ये ट्रुथ है हमारी। कि हम अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपनाते हैं, खुदा के हुक्मों को अपनाते हैं, खुदा के कलाम को अपनाते हैं, या हमारा हाल भी ओल्ड टेस्टामेंट जैसा है कि बदले का बदला लेकर तो मामला साफ होगा। बाइबल मुकद्दस में मुआफी के लिए 3 स्टैंडर्ड्स हैं। ओल्ड टेस्टामेंट हमें बताता है कि जब आपका कोई नुकसान कर दे तो मामला क्लियर करें। मामला साफ कैसे होगा, फॉरगिवनेस कैसे होगी कि आप भी उसका वो नुकसान करें। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, बैल के बदले बैल, माल के बदले माल, कत्ल के बदले कत्ल, और उसके बाद मुआफी। खुदा यीशु मसीह की जब सैक्रिफाइस सलीब पर नहीं हुई थी तो उसने दुआए रबानी में हमें कहा, और हम उसी को पढ़ते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, अच्छा है।
क्या پڑھتے ہیں؟ اپنے قصورواروں کو معاف کر۔ اے خداوند جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے ویسے ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ لیکن مسیح کی قربانی کے بعد، مسیح کے جان دینے کے بعد، جب اس نے صلیب پر ہماری تمام دستاویز کو کیلوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے، اس نے ہمیں واش آؤٹ کر دیا ہے، اس نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے، تو اس کے بعد تیسرا سٹینڈرڈ جو رائٹ ناؤ آج کا سٹینڈرڈ ہے جو اس نے کیا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ ہم معاف کیے گئے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کے قصور معاف کریں۔ ہاللیلویہ۔ دعائے بانی میں کہتے خداوند ہم جس طرح معاف کرتے ہیں ویسے ہی معاف کر دیں، لیکن مسیح کے قربان ہونے کے بعد، سیکریفائس کے بعد، قیمت ادا کرنے کے بعد، خون بہانے کے بعد ہم معاف کر دیے گئے ہیں، ہمیں معاف کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے کہ ہمیں معاف کیا گیا ہے۔ We already forgiven. We are forgiven. That's why we forgive others. ہمیں معاف کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اس لیے نہیں کہ جیسے ہم معاف کر رہے ہیں خداوند ویسے تو ہمیں معاف کر، آلریڈی خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے، and it is grace. یہ خدا کا کیا ہے؟ فضل ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، اور یہ سچائی ہے، اور یہ ٹروتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سچائی ہے کہ ہم معاف کیے گئے ہیں، یہ سچائی ہے ہم معاف کیے گئے ہیں، یہ سچائی ہے ہم معاف کیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام۔ غلام گھر میں نہیں رہتا، بیٹا گھر میں رہتا ہے۔ اس نے ہمیں معاف کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور ہم اس کے لوگ ہیں اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اپنے بارے میں سچائی سنیے، کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کی کھیتی ہو، مسیح کا روح تم میں بسا ہوا ہے، تم خدا کا مقدس ہو، خدا تمہارے اندر رہتا ہے۔ یہ سچائی ہے۔ تم پاک کیے گئے ہو، تم معاف کیے گئے ہو، تم پر رحم ہوا ہے، تم پر فضل ہوا ہے، خدا نے تم سے محبت کی ہے، اور یہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ آپ اس سچائی سے واقف ہیں، سچائی آپ کو آزاد کرے، سچائی آپ کو آزاد کرے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں معاف کیا گیا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، پھر آپ گناہ کے خلاف اور جھوٹ کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ابلیس کے کسی منصوبے کا حصہ نہیں بنتے۔ وہ مختلف طریقے سے آسانی سے ہمیں الجھا دیتا ہے، لیکن جب آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہیں تو پھر آپ گر نہیں سکتے، کیونکہ اودا ہاتھ سنبھالدا ہے خداوند پاک خدا۔ سچے نو ہمیشہ تیکر، سچے نو ہمیشہ تیکر، سچے نو ہمیشہ تیکر۔ سچائی یہ ہے کہ آپ کا خدا زندہ ہے، سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، سچائی یہ ہے کہ اس کے لہو
हमारी कीमत के लिए दिया गया है। सच्चाई ये है कि वो मुजस्सम गुलाम है। सच्चाई ये है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई ये है कि वो मेरे और आपके गुनाह लेकर सलीब के ऊपर गया है और हमारी कामिल खलासी कराई है। सच्चाई ये है कि वो किबरिया के यहाँ एक ही बार अपना खून लेकर गया है और हमारी कामिल खलासी कराई है। सच्चाई ये है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? खुदा के कलाम को बसने दे, खुदा के कलाम को दिल के अंदर रहने दे, खुदा के कलाम को दिल में जगह लेने दे। ये आपको आजाद करता जाएगा, ये आपको धोता जाएगा, ये आपको वॉश करता जाएगा, ये आपको कुव्वत देता जाएगा, ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ये आपको हकीकी बनाता जाएगा, ये आपको सच्चा बनाता जाएगा। खुदा के कलाम को दिलों में हालेलुया कैसे बसने दे? कैसे बसने दे? कि जदों दिल कीता उदों बसन देइए हैं, जदों खुदावन ने कोई काम कीता उदों बसन देइए। खुदा के कलाम को दिलों में कसरत से बसने। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर आता है, हमारे अज़ा सेहत पाना शुरू हो जाता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है और क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है। समटाइम हमें जरूरत है we correct ourselves, फिर खुदा का कलाम ही हमें करेक्ट करता है। जब हम बिलीव करते हैं, जब हम ट्रस्ट करते हैं, जब हम इसे अपनी जिंदगी में लेते हैं, वो हमें क्या करता है? करेक्ट करता है, वो हमें धोता है, वो हमें पाक। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हमारा खुदा बहुत ही मुहीब और सबसे कवी और कादर एलोहीम खुदा है, उस जैसा कोई नहीं। वो हर तौर से अपने आप को साबित करता है कि वो जिंदा खुदा है। दुनिया के माबूद महज बुत है, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो यहोवा यरी, वो यहोवा शलूम, वो यहोवा राफा, वो यहोवा नेसी, वो यहोवा सदकीनो, वो एल अलून, वो एदोनाई एल शदाई खुदा है। वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसने यशवा से कहा, मैं तेरे साथ हूँ, जहां तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा। खुदावन आपको भी कहता है, आप यशवा की तरह खुदा की वर्शिप कीजिए, खुदा से दिल लगाइए, वो आपके साथ रहेगा, वो कभी नहीं आपको छोड़ेगा। उसने कहा, जहां तू जाए मैं तेरे साथ। आप जॉब प्लेसेस पर हैं, आप सच्चाई पर कायम रहिए, खुदा आपके साथ है। आप घर में हैं, सच्चाई पर कायम रहिए, खुदा आपके साथ है। आप चर्च के अंदर हैं, सच्चाई में कायम रहिए, खुदा आपके साथ। खुदा झूठ के साथ नहीं होगा। खुदा किसके साथ होगा? सच्चाई के साथ। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें सच्चाई कुलजम से निकालती है। सच्चाई जो है, ज़बूर 85 के अंदर, सच्चाई ओदे अगे हुण चलती जाएगी, सच्चाई ओदे अगे हुण चलती जाएगी ते ओदे खुरदे पैंतरे नूं एक राह बनावेगी।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਡਗਮਗਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ। यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह हकीकत है। उससे दिल लगाए, उससे मोहब्बत करिए। उसने अब आपके लिए फिदिया दिया है, कोई और इंसान आपके लिए कुर्बान नहीं हुआ। खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ। उसकी सच्चाई उसको कुव्वत देती है कि वो सलीब पर अपनी जान पत्थरों के कहते हैं तू बादशाह है, कहता तो खुद ही कहता है तू खुदा का बेटा है, तूने कह दिया है। सच्चाई, सच्चाई पर कायम रहिए, खुदा आपको कायम रखेगा, खुदा आपके साथ होगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको संभालेगा, खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपको सरफराजी देगा। जो नहीं हुआ वो आपकी जिंदगी में हो जाएगा। जो आप नहीं कर पाते वो खुदा आपके लिए करेगा, क्योंकि आप सच्चाई पर करेंगे। तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें। एक हवाला और इसी सिलसिले की आखिरी आयत 47 वर्ष पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं। ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम किससे हैं? अगर हम खुदा से हैं तो फिर हम खुदा की बातें सुनेंगे, जैसे मसीह खुदा की बात सुनता था। वो कहता है जो कुछ मैं खुदा को बोलते हुए सुनता हूँ वो मैं कहता हूँ, जो उसे मैं करते हुए देखता हूँ वो मैं करता हूँ। और जब आप भी खुदा को सुनेंगे और आप वही कहेंगे जो खुदा ने कहा है, आप वही सुनेंगे जो खुदा कह रहा है, आप वही करेंगे तो आपका खुदा कर रहा है, और यही आपको छुड़ाएगा, और यही आपको रहाई देगा, और यही आपकी कुव्वत और आपका जोर और आपका सोर्स बना रहेगा। हालेलुया। तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपके साथ